चलिए, अस्सलाम वालेकुम all. Welcome to this ninth session of this course, and today we will inshallah finish the steady state analysis of transmission lines. So possibly, in fact, the full transmission, छोटा सा एक part रह जाएगा, which possibly we'll do in the next session in few minutes. Okay, we were looking over the impedance relationship last time. So let's write that again. That this is our just as a reminder, this is our line, this is our load, and this is our source. So this is my load. It has a characteristic impedance of Z naught. This is load is Z at equal to 0, and this is at Z is equal to minus L. And the impedance relationship which we looked last time, I'm gonna write it here: Z naught, ZL, Z naught, ZL, cos beta L plus J J V naught sine beta L over Z naught cos beta L plus J Z L sine beta L, where I actually am saying Zn is at Z is equal to sum minus L location. इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था और एंड वी रिमेंबर, इसको हमने कहा था ये इलेक्ट्रिकल लेंथ है, इलेक्ट्रिकल लेंथ इन रेडियंस, ठीक है. And this is electrical length in radians, and we said we will try to cast this length in the units of wavelength, so that beta जो है 2 pi by lambda, and this length in the terms of lambda, that would cancel out. And we looked over some interesting cases, such as if length is m lambda by 2, then what would happen? And if length is lambda by 4, what would happen? And if the load is short circuit or open circuit, what would happen? इन चीजों को हमने लास्ट टाइम देखा था. अच्छा, आज एक दो चीजें और इंटरेस्टिंग देखते हैं इसी इम्पीडेंस रिलेशनशिप की, एंड देन वी विल लुक ओवर एक्सटेंशन ऑफ दिस impedance relationship. You may recall that we had voltage maximum and voltage minimum on the line. जो आपकी voltage की equation थी, the voltage equation was what? V some V naught plus E minus J beta Z plus gamma E J beta Z. This sum of forward wave and backward wave, we have voltage maxima and minima on the line. Just remember that animation. And these voltage maxima and minima happen on some Z locations. So it would be interesting to figure out what would be the impedance at these maxima and minimum locations. क्या होगी impedance in maximum or minimum locations के ऊपर? That would be interesting to note. And some of you may have already may have guessed कि अगर voltage maximum है तो voltage minimum है, तो ये impedance in points पे कैसी होगी? So let's, before I do that, let me recall these curves for you. ये मैंने वो जो the MATLAB code which I posted over Slack, I'm using that code, and for this load impedance and characteristic impedance, I'm plotting this magnitude of the input impedance, as a function of the length. For different L's, this is the magnitude and this is the angle. So basically I'm using this relationship. ठीक है? ये वाला relationship I'm plotting here. And you see some very interesting things here. You see that at some Z locations, this
phase of the input impedance is 0. What does that mean? It means whenever the phase is 0, it means your impedance is what? It would be what? It would be a real number, fully real, whenever the phase is 0. Whenever phase is 0, your impedance is full real. You can see that. और इसको थोड़ा मजीद एलेबोरेट करने के लिए यू कैन सी कि जहां जहां इमेजिनरी पार्ट 0 है, यू नो, यू विल एक्चुअली फाइंड आउट कि इस लोकेशन के ऊपर आई कुड हैव plotted both of these overlaid each other, लेकिन unfortunately मैंने वैसा किया नहीं है. You can see ये जो points हैं ये 0 के, these actually corresponds to these 2 points. Maximum और minimum impedances हैं real के अंदर. And you would see, अब मैंने ये काम किया है, you would see this thing, ये जो red वाला है, ये रेड कर्व जो ओवरले मैंने किया हुआ है, दिस इज द वोल्टेज V. कोई मैंने वैल्यू ले ली है दिस पॉजिटिव की E माइनस जे बीटा Z प्लस गैमा E J beta Z. I plotted this red curve over this impedance for these values and you can see these things. Maximum voltage वहां पर है जहां पर impedance maximum है, और मिनिमम वोल्टेज वहां पर है जहां पर इंपेडेंस मिनिमम है. एंड यू कैन सी ये पॉइंट्स जो हैं मैक्सिमम और मिनिमम के, ये एक्चुअली ये मैं मैटलैब कोड पोस्ट कर दूंगा, आप प्ले कर सकते हो. दीज एक्चुअली हैपन एट दीज 0 इमेजिनरी पार्ट्स. 0 इमेजिनरी पार्ट्स के ऊपर ये चीजें हो रही हैं. सो ये इंट्यूटिव भी है बहुत. जब भी वोल्टेज मैक्सिमम होगा, यू नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल वोल्टेज रिलेशनशिप IZ max, V is what? IZ. So if I have V max, the impedance would be max. If I have V min, then impedance would be minimum. और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये Z max जो है और Z min, ये दोनों रियल हैं एंड दे अकर ऑन दोज मिनिमम एंड मैक्सिमम लोकेशंस. सो अब इसका क्विकली वी कैन क्विकली फाइंड आउट दिस मैथ ओवर हियर वेरी इजीली. वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? Sir, the point where you drew these purple crosses, could you please explain this again? So ये वाला जो, if you see this thing, this point here along on this line जो मैंने this red line which I plotted on all well नहीं, line नहीं plot करनी चाहिए मुझे. On these points your imaginary part of the impedance is 0 on all these points, and these points are basically these points are basically correspond to some Z's, right? Discrete points. और ये सारे Z's जो हैं ये Z max और Z min हैं, which you can actually see from here. This one is Z min, this one is Z max. ये मैंने ये red curve है, that's the voltage plot for these values. ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्लॉट करना मैटलैब के ऊपर. मैंने शेयर किया हुआ है कोड, लेकिन मैं ये अपडेटेड भी शेयर कर दूंगा जी. अनदर क्वेश्चन? ओके, ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स, इनका जो न्यूमेरिक, इनका जो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, और एक और कर्व है. फॉर एग्जांपल यू मे थिंक कि अगर लोड रियल मैंने लिया हुआ है, इट डज नॉट मैटर. मैं अगर कॉम्प्लेक्स लोड भी लो तो this situation would stay the same. You would have these points where you have imaginary part. Basically आपको पता है तो key concept जो है that impedance is a Z dependent variable. and जो input impedance है along the line, it's changing and it's whatever the load is, it would keep on changing. ठीक है, unless you have specific lengths. So if you recall this thing, Z max का the one we wrote,
relationship was phi plus 2 m pi. That was Z max. If I am interested in order to find Z in at Z is equal to, you know, Z max, so मैं क्या करूंगा, मैं substitute करूंगा इसको, I will substitute it into the impedance relationship. So वो the one I wrote at the top is in the real functions. I can happily substitute Z max for the L, लेकिन it would be complicated to solve these cosine functions. So I would go back and look over that complex notation which the z in the form of exponentials जो हमने लिखा था, I could use that e minus j beta z, which was this guy. ठीक है, you must have recalled from your last class. हम basically जो real function के ऊपर गए थे, we went from here. ठीक है, और ये impedance relationship था ratio of the voltage to the current. ठीक हो गया. So once I substitute this Z max over all these Z's, it becomes very straightforward to show that Z in and it becomes very straightforward. मैं algebra को skip कर रहा हूँ, आप इसको मैं I will leave it for you. Just couple of steps. You would see कि ये expression जो है that would become 1 plus gamma over 1 minus reflection coefficient. और ये इस तरह हुआ कि reflection coefficient को you can write as gamma e j phi in general reflection coefficient. Yes. Since this Z max is the distance from the lower average impedance is the maximum, or is it the maximum impedance? No, Z max, अगर आपको याद हो, the class before the last class, we figured it out. Okay, let me go back. So let's go to the session 7. If you recall, जब हम लोगों ने when we looked over this when we looked over the voltage equation, that's the sum of traveling wave and standing wave, and we said that there are points where the voltage would be maximum and the voltage would be minimum. So these Z max are those points which I am putting that in the units of length. ठीक हो गया? ठीक है? So Z max, what I am trying to do, देखो, okay, maybe it's becoming a little bit confusing for you guys. So मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं draw करता हूँ, ये मेरी लाइन थी, राइट, और इसके ऊपर ये वोल्टेज की इक्वेशन है, राइट, वोल्टेज जो the sum of forward wave and backward wave, this is V max and this is V min. On the same line we also have the impedance relationship, ये वाला. So ये आपका इस लाइन के ऊपर ये वोल्टेज की इक्वेशन प्लॉट हुई है, और इसी के ऊपर मैंने ये रेड, sorry, this one is the impedance has been plotted, and this red one is the voltage equation which has been plotted. And this voltage, जहां जहां voltage maximum है वहां पर impedance भी maximum है, ठीक है, और जहां जहां voltage minimum है वहां impedance भी minimum है. और ये voltage maximum जो है, this is happening at the Z max location जो हमने निकाला था 1/2 beta 2m plus phi. अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि इस पॉइंट के ऊपर मेरी इंपेडेंस है कितनी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है. वी आल्सो सी फ्रॉम दीज कर्व्स कि इसका रियल पार्ट 0 होगा. सो ऑन द Z maxes and Z minimums your impedance would be purely real. So if you recall, this one is equal to, Can you please clarify that which Z notation are you using for the impedance and which Z notation are you using for the distance? नहीं बेटा मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई, फिर से बोले, जरा आराम से बोलें. Can you please clarify which Z notation are you using for the distance and which one are you using for the impedance? Oh, okay, all right. So ये थोड़ी सी, अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो Z मैंने इस डैश के साथ लगाया हुआ है, that's the length, that's in the units of meters, ठीक है, और जो Z बगैर डैश के Z in लिखा हुआ, that's the impedance. ठीक हो गया?
ठीक है, थ्रू आउट मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, शायद मैंने कहीं पर ओवरलुक कर लिया हो, दैट विद दिस काइंड ऑफ अ z आई एम रिप्रेजेंटिंग द लेंथ यूनिट्स, और इस z के साथ मैं इंपेडेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इनपुट इम्पेडेंस or impedance at the z max locations is purely real. ये key point है, purely real, and it is equal to the characteristic impedance times the standing wave ratio VSWR. ये उसका मैग्नीट्यूड है। एंड सिमिलरली हम बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं फॉर द मिनिमम लोकेशन। so z in minimum was ये एस क्या चीज है? ये वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ये चीज है, ये एक्सप्रेशन था वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने देखा था इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, दैट 1 प्लस magnitude of the reflection coefficient over 1 minus magnitude of reflection coefficient is the voltage standing wave ratio, इसको हमने S भी कहा था, ठीक है जी सर, ठीक है। So similarly we can figure out Z min जो था 1 over 2 beta, and that was equal to phi plus 2m plus 1 phi. So once you substitute this Z min into the input impedance relationship, you get this as Z naught S. So ये key relationships हैं, that input impedance आपको derive करने की ज़रूरत ही नहीं है. These are expressions which can tell you that impedance is purely real at these locations. It won't be complex number. अभी देखना इसको हम use करेंगे अभी एक concept के अंदर, ठीक है. So टेक होम मैसेज इस सारा जो मैंने डिस्कशन की है ना, वो अगर आपने ग्राफिकली देखना है तो दीज आर द फिगर्स, दैट दिस रेड वन इज द वोल्टेज इक्वेशन और ये इम्पेडेंस इक्वेशन है, और ये कैसे कैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं. दे आर ओवरलैपिंग एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा लोकेशंस, जहां पर ये these वोल्टेज एंड दे आर मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक हो गया. Okay, so moving on, आगे चलते हैं and let's discuss another very important concept using this impedance relationship. अच्छा, आप लोगों ने many times note किया होगा that sometimes that when you are talking over the phone you hear the echo back. ठीक है, I'm sure सबने नोट किया होगा. या you know sometimes हर वो शायद आपने एक्सपीरियंस ना किया हो because it's a more digital cable, लेकिन sometimes you know in old times when we have the old cables you have the very poor TV reception going on. So इसको थोड़ा सा मजीद, ये तो प्रैक्टिकल मैंने एक बात की नहीं, फोन वाली रिफ्लेक्शन तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा नोट की हुई है. देखें, whenever there is an input wave and if this is Z naught and this is ZL and they do not match, there would be a reflection. So reflections are bad. You do not want reflections because reflections means in, let's say reflection, अगर let's say 0.2 का reflection है, coefficient है, इसका मतलब है the power the power which I am sending will not be fully utilized by the load, and some of the power would reflect it back, and that would be wasted. That won't be utilized by the load. In other words, iski example ek aur hum le lete hain, that I have a, you know, let's say I have a mic, you know, and I speak here in the mic, and this is the speakers. And the line which is connecting the mic and the speakers, you know, they have some sort of a reflection going on. So I would not be putting my whole voice in use. So reflections are bad. So now question is how to remove these reflections, because इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब इस पॉइंट के ऊपर कि whenever Z naught is not equal to ZL, you have reflection.
Now question is how to, So, yes. so is this problem also used in the transmission of power in transmission lines? So मुझे So आपकी why सही don't आवाज we समझ why नहीं आई why मुझे, why थोड़ा सा बेटा आहिस्ता बोलो, थोड़ा सा आपकी आवाज शायद सही नहीं है, आराम से बोले, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा और सारा फ्लोर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि रिफ्लेक्टेड वेव्स भी हैं और फॉरवर्ड वेव्स भी हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव्स तो उसमें भी होना एक नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि हमारी जितनी हम लोग दे रहे होते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से काफी लॉस हो जाता है हमारे रिजल्टेंट में। तो why don't we set ZL and Z naught such that they equal so there's no reflection and all of our power is transmitted. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात की है कि अगर जी ZL को मैं Z0 क्यों नहीं कर देता, so that reflections now, चक्कर ये है that you are saying that for every application we create, जहां पर obviously different loads होंगे, हम उसके लिए एक जो है स्पेशल लाइन क्रिएट करें जिसकी इम्पिडेंस Z0 हो, ऐसे ही बात है ना, टू अवॉइड रिफ्लेक्शन। लेकिन ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, अब हर, क्योंकि लोड्स तो वेरी करते रहेंगे, हाउ यू इंश्योर कि हर दफा जब लोड बदलेगा अब नई लाइन लाओगे, दैट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग टू डू। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें ZL इज इक्वल टू Z0 करें कैसे, हम क्या कोई इंजीनियरिंग, कोई फनकारी, किसी किस्म का कोई काम कर सकते हैं कि हम इस ZL को Z0 के बराबर कर दें, you know, by doing something, and you just understand one thing कि impedance जो है वो length dependent thing है over the line. For example, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, I'm not seeing Z0, I'm seeing some impedance at a length L. So इस concept को exploit करते हैं and try to remove all these reflections. ठीक है, इस concept को exploit करते हैं। Sir, is distortion also does distortion also include reflections or is it only interference of signals? नहीं, डिस्टॉर्शन एक और टेक्निकल टर्म है जो कि डिफरेंट, आई वुड से डिफरेंट एप्लीकेशंस में, आरएफ के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर उनकी थोड़ी सी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं इस पॉइंट पे आपसे ये कहूंगा कि डिस्टॉर्शन और रिफ्लेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। Okay, sir. Thank you. Sir, जी सर जो हम बात करेंगे जी लोड है, जी लोड यहाँ पे इसमें क्या है हमारा, इज इट दी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर Z0 ZL ZL, what is the load? लोड इज एनीथिंग, लोड कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मेरा, मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपके पास, सबके पास हमें हमारे पास जिस सबके पास सेल फोन्स मौजूद हैं, उनके अंदर एंटेना लगा हुआ है, राइट? वो एंटेना जो है वो आपके सेल फोन का सिग्नल भेज भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है। इस एंटेना को हम पावर कर रहे हैं किसी सोर्स के साथ, और सेल फोन का सिस्टम है 900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर टिपिकली। सो इस एप्लीकेशन के अंदर आपका लोड ये एंटेना बन जाएगा। लोड कुड बी एनीथिंग व्हिच यू आर ड्राइविंग, ठीक है? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि हम ये रिफ्लेक्शन को खत्म कैसे करें। लेट्स लुक ओवर दैट। सो हम अपना जरा सेटअप बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं। मैं ये यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, Zin जो है Z0 ZL cos beta L plus JZ0 sin beta L over Z0 cos beta L plus JZL sin beta L। आपको याद होगा हम लोगों ने we figured it out that for Z is equal to lambda by 4, Zn is equal to Z0 square over ZL, you know, जब L lambda by 4 के बराबर है, यहाँ it is a multiple of 2m plus 1 lambda by 4। मैं इसको m lambda by 4 नहीं लिख सकता क्योंकि m को जब मैं 2 करूंगा
तो ये लैम्डा बाय 2 बन जाएगा. तो आई वांट टू मेक श्योर कि इट्स बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द ऑड इंटीजर्स. सो 2m + 1 लैम्डा बाय 4 लेंथ होगी, तो मेरी इनपुट इंपेडेंस ये होगी. सो वी गोना एक्सप्लॉइट दैट कांसेप्ट हियर. सो अब इसको अच्छे तरीके से मेरे से आपने समझ लेना है. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग व्हिच आई एम गोना डू नाउ. सो ये आपका सिस्टम है, ठीक है, and this is your load and this is your impedance, and your reflection coefficient exists, which is ZL minus Z naught over ZL plus Z naught. Gamma L would exist. ठीक है. अब अगर मैं एक काम करूं यहां पर, that I in this figure what I'm gonna do कि मैं यहां से इस लाइन को लोड से काटूंगा. ठीक है, ये रेड लाइन जो है वो मेरी ओरिजिनल लाइन है, which is Z naught जो चल रही थी, और इसके दरमियान में what I'm gonna do is I am gonna insert a line of some impedance Z naught dash, but of the length quarter wave, you know, 2m plus 1 lambda by 4 लेंथ का मैंने ये सेक्शन डाला. ठीक हो गया. ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं मैंने की, बस मैंने इसकी लेंथ जो है ये बस मैंने मेक श्योर करनी है क्वार्टर वेव हो. ठीक है, हम इसको कहेंगे क्वार्टर वेव. ठीक है, ये मैंने डाल दी. अच्छा, अब जब ये मैंने डाल दी, नाउ यू टेल मी कि इस पॉइंट के ऊपर मेरी इंपेडेंस क्या होगी. When I am standing here, what would be my impedance? My impedance would be this guy, because मुझे पता है कि मेरी जो impedance transform होती है that follows this relationship. ठीक है, so अगर ये मुझे पता है तो I would say कि यहां पर Z in जो है वो क्या है, Z naught dash, वो जो मेरा ये था this one over the load. अब अच्छा, अब क्या होगा, मेरी वेव जब यहां पर पहुंची है इस पॉइंट के ऊपर, उसको मिला है Z naught dash, उसको नजर आया. ठीक है, जी, ओ सॉरी, यस, Z naught dash, जी, सॉरी, Z naught dash स्क्वायर. ठीक हो गया, ये नजर आया उसको. ठीक है. अच्छा, अब ये यहां पर वेव पहुंचेगी, तो यहां पर क्योंकि मीडियम मिसमैच हो गया तो रिफ्लेक्शन होगी. Z naught dash का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कर दूं यहां पर इस पॉइंट के ऊपर, दैट इफ माय Z in is equal to Z naught, यानी कि यहां पर मेरी इंपेडेंस जो है वो Z naught में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है दिस रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म्स द इंपेडेंस एज आई मूव क्वार्टर वेव एंड आई रीच हियर एंड माय इंपेडेंस ट्रांसफॉर्म टू Z naught, तो मेरी रिफ्लेक्शन यहां पर नहीं होगी. ठीक हो गई बात. सो इन अदर वर्ड्स, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, क्योंकि ताकि आप इसको गड़बड़ ना करो. लेट्स कॉल दैट a dash. So at a dash, if Z in is equal to Z naught, then the wave traveling on line reaching a dash section will experience no reflection in the system. अच्छा, अब इसके अंदर अभी चक्कर ये है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, और मुझे पता है अभी कंफ्यूजन आपके दिमागों में क्रिएट हो गई होगी. सो कोई मसला नहीं, अगले 20 मिनट 25 मिनट में मैंने ये कंफ्यूजन आपकी खत्म करनी है और आपको कन्विंस करवाना है दिस इज गोना वर्क. सो मैथमेटिकली अभी देखें सिस्टम को. अभी मैं आई विल टॉक अबाउट इंट्यूटिवली टू कि हाउ दिस इज गोना वर्क, बट लेट्स लुक ओवर प्योरली फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस थिंग फर्स्ट. सो
अगर इस पॉइंट के ऊपर इम्पिडेंस जी नॉट हो गई, इसका मतलब ये है कि ZL तो मेरा नोन है, यानी ZL तो मेरा लोड है, उसको तो मैं बदल नहीं सकता. If I make Z naught dash is, it's not a good color. So if I make Z naught dash, अब मैंने इसके अंदर, ये मेरी इक्वेशन है, Z naught dash square is equal to what? Z naught ZL. Or this would become Z naught dash is equal to Z naught ZL. In other words, hear me very clearly. In other words, if the impedance of this quarter wave line is square root of Z naught into ZL, then at this A dash section, my input impedance would be Z naught. और जब ये हो जाएगी इनपुट इम्पीडेंस Z नॉट, इसका क्या मतलब है कि मेरी वो जो एक प्योर फॉरवर्ड वेव है, जो मे बी सम ऑफ मेनी फॉरवर्ड वेव्स है, वो जब इधर पहुंचेगी वो तो कहेगी ओह मैं तो Z नॉट में ट्रेवल कर रही थी, तो आगे भी Z नॉट ही है. सो देयर वुड नॉट बी एनी रिफ्लेक्शन ऑन A डैश. इन अदर वर्ड्स आपको ये लगेगा कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये Z नॉट बन गया. वो जो शुरू में एक ने बात की थी कि अगर मैं ZL को Z नॉट क्यों नहीं बनाता, तो मैंने ZL को Z नॉट बना दिया, लेकिन I did not change physically the ZL. I did engineering in such a way that it appears to be now Z naught, but it is not Z naught. So there's a difference. So since अगर ये lossless line है, जो कि most of the cases में होती है, अगर यहाँ पर reflection नहीं हो रहा, इसका मतलब है for all the practical purposes आपकी तमाम की तमाम पावर लोड में जा रही है. ठीक हो गया जी? यस. So is there any practical application of this phenomenon that हाँ भाई, we have to change the yeah, it's very practical. It's very practical. Typically what happens, जितने भी आपके लाइंस है ना, ट्रांसमिशन लाइंस, फॉर एग्जांपल ये टीवी रिसेप्शन हो गई, एंटेनाज हो गई, इनकी जो इम्पिडेंसेस होती है 70 और 50 ओम्स होती है टिपिकली इन कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंसेस. सो लोड ऑलवेज मिसमैच होता है, तो आपको ऑलवेज ये क्वार्टर वेव लाइन डालनी पड़ती है अपने सिस्टम के अंदर टू मैच द इम्पिडेंसेस. So this is very practical. This is a common thing to do in all high frequency systems, to put a quarter wave transformation in all RF. आपका जो सेल फोन है उसके अंदर जो एंटेना लगा हुआ है, उस एंटेना और जो उसका सोर्स है उसके दरमियान भी क्वार्टर वेव लाइन लगी हुई है to match it to your source. ठीक है? So ये बहुत practical चीज है. अच्छा, अभी ये मैथमेटिकली तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि दिस इज वर्किंग. ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं, यानी आई वांट यू टू थिंक वेरी इंट्यूटिवली है. तो मैं वापस जाता हूँ. सर जी जी बोलें. तो जैसे आपने अभी सेल फोन के एग्जांपल दिए, तो सेल फोन के लिए Z नॉट क्या होगा? सेल फोन के लिए Z नॉट जो ये तो मुझे नहीं पता कि हर सेल फोन के अपने Z नॉट्स होंगे, लेकिन जनरल क्या होगा कि जो सेल फोन है इट इज अटैच्ड टू ए सोर्स और ये फीड लाइन है, इनकी कोई ना कोई Z नॉट होगी, और वो जो एंटेना लगा हुआ है ना, ये उससे मिसमैच होती हैं. यस सर. और उसके दरमियान में यू ऑलवेज डिजाइन एंड पुट अ क्वार्टर वेव लाइन हियर टू मैच इट. ये जो सोर्स है ये सेल फोन के अंदर ही होती है? तो आपकी बैटरी है सोर्स यार. बैटरी आपको एनर्जाइज करी, तो पूरा सिस्टम बना हुआ है. आपका बैटरी है, अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है व्हिच इज फीडिंग द एंटेना टू मेक इट एन एसी सोर्स. नहीं, आपकी तो फिर हम आवाज ऐसे क्यों नहीं करते, बैटरी को ही वो उसी तरह का बना दे ताकि हमें क्वार्टर वेव लाइन डालनी. बैटरी को उस तरह का बना ले. नहीं ना, वो यार ये पूरा बैटरी सिर्फ एंटेना को फीड नहीं कर रही, बैटरी पूरा सिस्टम आपका स्मार्टफोन चला रही है, उसमें बहुत सारी चीजें और हैं. इट्स नॉट जस्ट एन एंटेना. अच्छा सही है सर. ठीक है ना? अच्छा सही है सर, थैंक यू. ठीक है. अच्छा, अब इसको बड़े गौर से सुनना, थोड़ी सी मैं इंट्यूशन आपको देने लगा हूँ. I'm gonna give you a little bit intuition here on this, क्योंकि स्टोरी इतनी
यानी कि या इट्स एन इजी वन, समझ आ गई है कि इट्स वर्क्स। यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ कि ये लोड है और ये ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है और अभी मैंने जो लोड है उसको मैंने मैच करना है लाइन से, तो आई वुड जस्ट टेक अ पीस ऑफ क्वार्टर वेव लाइन λ/4 लाइन जिसकी इंपेडेंस ये और लगा दूं और मेरी रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन स्टोरी इज नॉट दैट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है बीइंग एन इंजीनियर एंड बीइंग ए साइंटिस्ट आपको ये चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ आए। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, और बड़े गौर से सवाल को सुने। जब मैंने एक क्वार्टर वेव लाइन लगा दी, यू नो मैच लाइन लग गई, यहां से वी हैव ए वेव व्हिच केम, सो देयर इज नो रिफ्लेक्शन हियर। ठीक हो गया, वो हमने साबित कर दिया, ठीक है, यस। अच्छा, अब चक्कर ये है, और ये बड़ी अजीब सी बात है और आप लोगों को इस पर जरूर कंफ्यूज होना चाहिए कि क्वार्टर वेव लाइन Z0 डैश है और मेरा लोड ZL है, तो इधर क्या होगा? इधर मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा या क्या होगा? क्योंकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बाय डेफिनेशन इज व्हाट? ZL माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0। तो यहां पर तो ये तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 नहीं है। यहां पर अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब है कि यहां पर जब वेव एक आई, ये तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्शन जब इधर पहुंचेगा तो आप कहोगे अच्छा ये Z0 डैश है और यहां पर मुझे पता नहीं Z0, यू नो, अगर मैं सिर्फ देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सोलली कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस डिपेंडेंट चीज है, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा। तो आप कहोगे सर ये आप क्या कर रहे हो, you know there is no reflection here you are claiming as you are showing through the math, लेकिन ये रिफ्लेक्शंस किधर जा रहे हैं जो बीच में हो रहे हैं, जो लाजमी हो रहे हैं? जी, did you get this what I'm saying? कोई थॉट इसके ऊपर? You understand the problem? यानी कि पिक्चर पूरी बन नहीं रही, कनेक्ट नहीं हो रहा। ये मैथ इंडीड गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट, 100% करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट फॉर श्योर। यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अच्छा बट डेफिनेशन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो ये है, तो यहां पर तो रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर भी ये छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तो ये जा किधर रहे हैं रिफ्लेक्शन? वेयर दे आर गोइंग? सो व्हाट्स गोइंग ऑन? जी बोलें। Why don't we use half wave line? Why are we using quarter wave line? Because if there's a half wave line, then there won't be any reflection at this point. No. हाफ वेव लाइन करेंगे तो इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू लोड। अगर मैं इसको हाफ वेव लाइन लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरा ZL रहेगा, तो मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्टिल इधर वो रहेगा जो था ऑलरेडी ओरिजिनली। मतलब इस्तेमाल तो फिर वही होगा ना, जो जेनेरिक सिविल थ्योरी होती है वही होगी फिर। नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होगा ना, क्योंकि मिसमैच द लोड एंड द लाइन आर मिसमैच, यू कैन नॉट अवॉइड रिफ्लेक्शन, mismatched, you can't do anything, it's a mismatched line and load, there would be reflection, लाजमी होगा, ठीक है। अच्छा, अब बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। सो बेसिकली होता क्या है is this, let's say this thing कि हम लोगों ने we put this line here of λ/4, you know मैच लाइन है और हमने स्टडी स्टेट के अंदर सिस्टम जो है इट्स वर्किंग। सो थोड़ा सा ट्रांजिएंट को सोचते हैं और देखते हैं उधर क्या होता है। लेट्स से द फर्स्ट वेव व्हिच केम हियर, द फर्स्ट वन जो आएगी ना, जो पहली आएगी, अभी हम स्टडी स्टेट भी नहीं पहुंचे, ये क्वार्टर वेव लाइन और सारा एनालिसिस जो हमने ऊपर किया है, दैट्स ऑल ओवर द स्टडी स्टेट, द फर्स्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिएंट। सो फर्स्ट वेव जो इधर आएगी, when it hits this guy boundary, it will make a reflection here, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन बनेगा और कुछ वो आगे चली जाएगी, ऐसा ही है ना, ठीक है ना? यस, कोई एक बंदा अगर मेरे साथ इंटरेक्टिव हो जाए दैट वुड बी ग्रेट। यस,
जी सर. Okay, so once this wave reaches this part, इसमें से again कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ आगे चला जाएगा, ऐसा ही होगा. अब ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, अब बड़े गौर से देखना है आपने. ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इधर पहुंची और अगेन यहां पर रिफ्लेक्शन होगा और कुछ आगे चली जाएगी, ऐसा ही है. कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों के दरमियान में फेस डिफरेंस कितना है? इन दोनों के दरमियान में ये जो पहला रिफ्लेक्शन हुआ था और वो जो पहली वेव आई थी उसमें से जो आगे गई थी और वो जो रिफ्लेक्ट होके आई है वापस, इन दोनों के दरमियान फेस डिफरेंस कितना है? सर पाई का होगा. अब जबरदस्त, वेरी गुड. कैसे आपने कहा? बेहतरीन, एक्सीलेंट. नाम क्या है तुम्हारा? सैफ. सैफ, जबरदस्त. क्यों? क्योंकि ये जब गया है इसने λ/4 लाइन आगे गया है और फिर λ/4 वापस आया तो उसने हाफ लाइन, जो हाफ लाइन इसने ट्रावर्स की है, जिसका मतलब पाई फेस शिफ्ट है. ठीक है ना? λ/4 इज पाई फेस. आपको याद है ना, ये है लैम्डा और टू गो टू द अदर पीक दैट बिकम्स λ/2. सो हाँ, इसका मतलब है ये कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, है कि नहीं? जी सैफ, राइट? यस सर, कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैंसल आउट हो जाएंगे. जबरदस्त. अब आप ये देखो, ये जब इधर पहुंचेगी, ये आगे जो अगली है वो आगे जाएगी एंड कुछ आगे जाएगी, कुछ वापस आएगी, और ये जो आएगा ये इन द सेम फेस होगा, ये वाला है इसके. So in other words, you would see कि हर as you are going back and forth, infinite reflections होंगे जिनका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन वो ऑल्टरनेटली एक दूसरे के पाई फेस शिफ्टेड होंगे. इसका मैथ बकायदा किया जा सकता है, लेकिन ये सारों का रिजल्टेंट जो है ना, जब आप इनको सम करोगे ना तो जीरो हो जाएगा. सो जो बड़ी खूबसूरत बात है वो ये है कि ऑल्दो इस लाइन के ऊपर इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस हो रहे होंगे λ/4 के ऊपर, लेकिन वो सारे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और सारे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. देयर इज नो अदर वे कि जितनी एनर्जी आई थी वो तमाम की तमाम लोड के अंदर जाएगी, क्योंकि कहीं वो डिसिपेट नहीं हो रही, because they're cancelling, assuming it's a lossless structure and everything is going into the load. So intuitively, this is the kamal of this λ/4 line कि वो फेस बेसिकली पाई का डाल देता है दो कंसेक्टिव, एंड उसकी इम्पिडेंस ये होगी, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो अगर आपसे बीइंग एन इंजीनियर, if you pursue this, yes, go ahead. सर जो कॉर्पोरेट लाइन में रीजन में जितने रिफ्लेक्शंस हैं उनका भी फेस शिफ्ट पाई होगा. इस λ/4 की जो लाइन है ना, यहाँ पर बहुत रिफ्लेक्शंस हो रहे होंगे, और वो आपस में हर दूसरा ऑल्टरनेट रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ फेस में होगा, और बाकी यानी कि हर दूसरा रिफ्लेक्शन पहले रिफ्लेक्शन से पाई फेस शिफ्ट आउट होगा, एंड सो फोर्थ. तो जो सीरीज लिखेंगे ना, लेट्स से दैट 1 प्लस लेट्स से, अगर मैं वो लिख रहा हूं ना, it would be A1 minus A2 plus A3 minus A4 plus and so on and so forth with different magnitude. इनका जो सम होगा ना वो जीरो होगा. एक्चुअली ये मैथ के थ्रू साबित किया जा सकता है, बट हम उस डिटेल में नहीं जाते. ठीक हो गया? So that's the intuition and that's why this quarter wave works. अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं. जबरदस्त, हमने ये λ/4 लाइन लगा दी यहां पर, और मेरा जो सोर्स है लेट्स से उसकी फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है, और मैं इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इफ आई चेंज इट टू 200 मेगाहर्ट्ज, द क्वार्टर वेव लाइन व्हिच आई पुट इट फॉर द ओरिजिनल सोर्स जिसने मैचिंग की थी, क्या वो 200 मेगाहर्ट्ज के लिए भी वर्क करेगी? कोई बताएगा इसका जवाब? So the question is that you designed a system, you put up a quarter wave layer, and originally your source was 100 megahertz and you designed λ/4 for that. So अगर आप सोर्स को बदल के 200 मेगाहर्ट्ज कर दोगे तो आपकी क्वार्टर वेव लाइन वर्क करेगी कि नहीं करेगी? मैचिंग होगी कि नहीं होगी? सर नहीं मैच करनी चाहिए. वजह?
फिर क्योंकि पहले हमने लैम्डा के लिए डिजाइन की थी ना, अब वो लैम्डा आधा हो गया है, तो बेसिकली अभी जो हमारी लैम्डा बाय 8 हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखो हम इसको जेनेरिक लैम्डा बाय 4 कह रहे हैं। जब लैम्डा कह रहे हैं, लैम्डा डिपेंड अपॉन द सोर्स। अगर सोर्स बदल जाएगा तो इस लाइन की लेंथ लैम्डा बाय 4 नहीं रहेगी, वो कुछ और बन जाएगी। और लाइन की लेंथ अगर लैम्डा बाय 4 नहीं रहेगी तो यू डोंट हैव द क्वार्टर वेव लेंथ ऑन द लाइन एंड योर मैचिंग वॉन्ट वर्क। इसको बेसिकली सारे फिनोमेना को क्वार्टर वेव मैचिंग कहते हैं, क्वार्टर वेव मैचिंग कहते हैं, या क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं इसको, क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इस लाइन को। सो ये इसका ड्रॉबैक है। इट कैन, अगर आपने एक लाइन लगाई है और कल को आपको ख्याल आया ओह मुझे तो ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदलनी है, यू नीड टू चेंज द क्वार्टर वेव लाइन फॉर द न्यू सोर्स। यू कैन नॉट कीप द सेम क्वार्टर वेव लाइन। सो अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं मजीद एक बात ये भी कर देता हूँ, दैट दिस इज बिटवीन द लोड। अगर आपकी दो लाइंस हैं जिनकी दो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंसेस डिफरेंट हैं, आपने उन दोनों को ज्वाइन करना है। सो दिस इज द सेम प्रोसेस कैन बी डन हियर। यू पुट अप अ लाइन, क्वार्टर वेव लाइन ऑफ Z नॉट डैश, और आप ये दो लाइनों को ज्वाइन कर दोगे टू अवॉइड एनी रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अच्छा अब एक चक्कर और है यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर मैं ये बात कहूँ, यू नो, सो दिस क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर true for single frequency. So it's true for single frequency. ये बड़ी narrow bandwidth होती है इसकी. You cannot have a broadband quarter wave, although you can do other engineering stuff, but वो हमारा scope से बाहर है। लेकिन this first concept you should remember that it's true for just one frequency. अच्छा, एक और problem है इसके अंदर। अभी आपने ये देखा है कि मैंने Z नॉट डैश आपको बताया इट इज इक्वल टू Z नॉट टाइम्स ZL। लेट्स से अगर Z नॉट मेरा 50 है और लोड इज 100, आई गेट आई थिंक 75 ohms इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। चलो, यानी कि इसको मैं 75 नहीं कहता, अ रियल नंबर, राइट। व्हाट इफ अगर मेरा लोड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो फिर मैं क्या करूंगा? लेट्स से मेरा लोड जो है वो 100 प्लस J50 है, देन व्हाट वुड हैपन? देन व्हाट आई एम गोना डू, क्या मैं ये करूंगा 50 टाइम्स 100 प्लस J50, राइट? मैथ तो मुझे नहीं रोकता ये करने से। तो यहां पर जब मैं करूंगा तो मेरे पास एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे क्वार्टर वेव लाइन एक ऐसी डिजाइन करनी है जिसका एक रियल पार्ट हो और जिसका एक इमेजिनरी पार्ट हो। इमेजिनरी पार्ट को मतलब कि मुझे लॉसी क्वार्टर वेव लाइन डिजाइन करनी है। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, और ये वाला काम प्रैक्टिकल भी नहीं है कि अगर लोड कॉम्प्लेक्स है यू कैन नॉट पुट द क्वार्टर वेव लाइक दिस। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? और इन जनरल लोड आपका रियल कभी यानी कि होता भी है लेकिन बहुत दफा नहीं भी होता, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें हम? इस प्रॉब्लम को हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो हम लोगों ने ऊपर एक कॉन्सेप्ट देखा था कि एट मैक्सिमा और मिनिमा लोकेशन आपकी इम्पीडेंस प्योरली रियल हो जाती है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी गोना डू, वी गोना चेंज, ट्रांसफॉर्म, वी विल रीच टू द पॉइंट इन द लाइन वेयर योर इम्पीडेंस बिकम्स रियल, और वहां पर क्वार्टर वेव मैचिंग करते हैं। ये बात को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एलेबोरेट करता हूँ। So let's do this for the complex matching. So never do this for the quarter wave matching. This is incorrect. So let's do कि अगर complex load होगा तो हम कैसे करेंगे? Let's look over an example. Let's say कि ये मेरा system है, all right, and I have this load. Let's say load is 100 plus J 150 ohms, ये मेरा लोड है और मेरी इम्पिडेंस 50 ohms है। फॉर श्योर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है लोड के ऊपर। हाउ टू रिमूव दैट? सो लेट्स डू फ्यू बुक कीपिंग थिंग्स। जल्दी से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फिगर आउट कर लेते हैं। वो किसके इक्वल होगा? वी नो दैट इज इक्वल टू ZL माइनस Z नॉट ओवर ZL प्लस Z नॉट, एंड दैट बिकम्स, इसको जब आप सॉल्व करोगे
उसका मैग्नीट्यूड आएगा 0.745, EJ 0.464। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है आपने जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये फेस को रेडियंस में रखना है, बिकॉज ये जो बीटा L एंड एवरीथिंग उसके अंदर ये रेडियंस में है, तो you need to have this in radians. Don't do this in degrees and add later in the beta L. That would be incorrect. ठीक है। अब सिमिलरली इसकी स्टैंडिंग वेव रेशियो भी निकाल लेते हैं। स्टैंडिंग वेव रेशियो VSWR is 1 plus gamma over 1 minus gamma। जब मैं ये करूँगा तो 1 plus 0.745 over 1 minus 0.745, स्टैंडिंग वेव रेशियो इसकी है 6.84 और वो मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर सिर्फ रियल लोड्स के लिए करेगा काम, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके ऊपर ठहरो, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं, नया ये लंबा बनाता हूं मैं, ये ZL जो मेरा कॉम्प्लेक्स है 100 प्लस J150 और Z0 मेरा 50 ohms है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई विल वॉक, मुझे पता है इस पॉइंट के ऊपर मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं यहां पर अगर क्वार्टर वेव लाइन लगाऊं, तो मेरी जो क्वार्टर वेव की इंपेडेंस है दैट वुड बी 50 times 100 plus J150. ये not allowed. This is not allowed. So what I'm gonna do, that I'm gonna walk over the line. I'm gonna walk over the line और उस पॉइंट पे जाऊंगा जहां पर मेरी इंपेडेंस रियल नंबर हो जाए, और मुझे पता है वो कहां पर होती है। आई नो दैट बिकॉज इस लाइन के ऊपर आई वुड हैव ऑल दोज मैक्सिमास और मिनिमास। ये रियल होगी जहां पर मेरा वोल्टेज मैक्स है या वोल्टेज मिन है। इन अदर वर्ड्स दिस वुड बी रियल ऑन Z मैक्स और Z मिन के ऊपर रियल होगी। सो मैं Z मैक्स पिक कर लेता हूं, लेट्स से कि Z मैक्स को मैं पिक करता हूं। सो Z मैक्स would be what point? Minus 1 over 2 beta phi plus 2 m pi, और मैं फर्स्ट मैक्स लेता हूं, Z मैक्स फर्स्ट, तो ये m0 हो जाएगा, तो इसको मैं कैंसल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास रह जाएगा phi over 2 beta। तो मेरा जो Z मैक्स की लोकेशन आएगी, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म, phi मैंने क्या निकाला था ऊपर, 0.464, 0.464 in radians, और बीटा इज 2 पाई ओवर लैम्डा। सो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने इसको लैम्डास में रखना है, मेरा Z मैक्स की लोकेशन आएगी 0.0369 लैम्डा फ्रॉम द लोड। मेरा जो है लेट्स से ये लोड से मैंने वॉक करना शुरू किया है, और मैं इस पॉइंट पे एज एन एग्जांपल, स्केल पे नहीं है, लेट्स से ये पॉइंट मेरा जो है फर्स्ट Z मैक्स है। ठीक है, so let's say that's my first Z max as an example, which is equal to 0.0369 lambda. इस पॉइंट के ऊपर what would be my impedance? We just wrote it कि Zn यहां पर क्या है मेरी, for Z max, फिर मैंने छोटा कर दिया, इज इक्वल टू क्या थी, Z0 टाइम्स वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। Z0 50 है और वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो हमने ऊपर फिगर आउट किया 6.84। सो दिस इज 6.84 एंड दैट बिकम्स 342.15 ohms। सो यहां पर मैं जब खड़ा हूं, मेरी इंपेडेंस जो है वो रियल है। अब बड़े आराम से मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर मैं क्वार्टर वेव लगाऊंगा, इस पॉइंट पे मैं क्वार्टर वेव लगाऊंगा, जो भी मेरी लेंथ बनती है, जो मैं लगाना चाहता हूं, लैम्डा बाय 4 सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ होगी, ये लगाऊंगा मैं यहां पर
इस पॉइंट के ऊपर, और उसकी इम्पिडेंस क्या होगी फॉर दिस क्वार्टर वेव, जो मेरा लोड है वो 342.15 ohms है. So for this guy my impedance becomes 50, जो ये वाली है Z naught is equal to 50, और जो उस तरफ है लोड 342.15 ohms square root, and that becomes 130.8 ohms. So यहाँ पर मैं 130.8 ohms का रियल एक क्वार्टर वेव लाइन लगाऊंगा तो मेरी इम्पिडेंस मैच हो जाएगी. यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मेरा कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा. यस, यहाँ पर मेरे रिफ्लेक्शंस होंगे इस लाइन के ऊपर, और इंट्यूशन वही है, वो रिफ्लेक्शन सारे कैंसल आउट हो जाएंगे और मेरी सारी पावर ZL में चली जाएगी. ठीक हो गया. सो दैट्स द क्वार्टर वेव मैचिंग which could be done for any kind of load. अच्छा, बिफोर आई स्टॉप एक मैं कमेंट इस पे दे देता हूँ आपको, मगर उसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम. वो ये है कि बहुत दफा ये Z नॉट इक्वल टू 130.8 ohms का मतलब ये है कि आपने यू नीड टू डिजाइन a transmission line of Z naught is equal to 130.8 ohms. You need to design and fabricate actually. It is very possible कि ये नंबर आप practically ना achieve कर सको. You know, in many cases, sometimes ये possible है नहीं. तो उसके लिए we can do some more engineering single stub matching. ये बस मैं वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, हम इसकी डिटेल में ही जाएंगे, और डबल स्टब मैचिंग. बट लेकिन आपके पास अब टूल्स इतने मौजूद हैं कि आप अपने ओन पे अगर कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दीज मीन्स. ठीक हो गया. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू cover, and basically this finishes the whole steady state analysis of transmission line. आज हमने मैचिंग भी देख ली, हमने रिफ्लेक्शन को रिमूव करने का तरीका भी समझ लिया. अगर आप इसको देखो गौर से, जितने भी 9 क्लासेस गुजरी हैं, the whole thing actually is standing on the sum of forward and backward wave equation. सारा कुछ इधर से ही हमने किया है. This one, this equation, V naught plus E minus J beta Z plus gamma V naught plus E plus J beta Z. सारे 9 सेशंस जो हैं उनके रूट के ऊपर ये इक्वेशन खड़ी है जिसको हमने एक्सप्लोर किया. Okay, so next time we'll spend maybe 20 minutes on transients, and that would end our transmission line content. और अगले क्लास के अंदर on Monday I will start on vector calculus. Review करूँगा मैं. This Friday I would be doing tutorial myself on these transmission line problems. So मैं यहाँ पे recording pause stop कर रहा हूँ, and I will still be with you for answering any of your questions if you have.